Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ISAR School of Accountancy. Yes, so I have two participants with me, and it is Kinza and Mubin. Are you there with me, Kinza and Mubin? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, that's good. And Kinza? Okay, Kinza, I can hear you. I got a response from Mubin. Okay, that's great. So both of you can hear me, and let's start our today's lecture. So what we are going to do, we are going to study MAF2 Management Accounting. And my name is Isha Zubair, and I'm an ACCM member. I'm teaching since more than 7 years now. So I'll be your trainer for this course. Okay, so first of all, I would like to know something about you guys, like which subjects are you done with? Kinza, which subjects are you done with? You can give your, you can type down your answers. You can say, it's up to you. Okay, Kinza has done with MA1, okay. And you have not started MA2, Kinza? Okay, so you're going to revise. Okay, okay. How much did you score in MA1? Okay, mashallah. That's good. All right, coming to Mubin. Yes, Mubin. मैम अभी रिसेंटली मैंने F3 का किया है और उसमें मेरे 76% आए हैं और मेरे एग्जाम है क्योंकि मैंने बीकॉम किया हुआ है तो मेरे ये FA1 FA2 MA1 MA2 एग्जाम है लेकिन मैंने MA1 MA2 पहले छोड़ा नहीं था, मैंने पहले F2 स्टार्ट कर दिया था। इसको ये दोनों नहीं थे पढ़े तो मुझे मुश्किल हो रही थी, तो अभी फिर मैं MA1 और MA2 की क्लासेस ले रही हूँ। ओके, ठीक है, तो आप MA1 और MA2 की क्लासेस ले रही हैं और F2 भी आप यस मैम। स्टार्ट कर दी है. ओके, यस मैम। got it. So this is kind of going to be a revision for both of you because Kinza ने F2 पे पढ़ा हुआ है. This is a revision class. Mubin आपका भी हुआ है, मतलब MA2 पढ़ा हुआ है, तो you're kind of familiar with the topics. Okay, so no problem. समझ आ गई है मुझे बात कि किस तरह से इसको लेकर चलना है कोर्स को आप दोनों के लिए. ओके, अज्यूमिंग नहीं बल्कि आप लोग से कन्वर्सेशन के बाद इस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ कि मुझे ये कोर्स थोड़ा सा फास्ट लेकर चलना चाहिए. ठीक है, so I will be moving through the course fast. Okay, since you guys have a good base and you are into this, just to clarify your things further, so we are going to do that. अगर बीच में कहीं लगता है कि नहीं बहुत फास्ट हो गया मैम या ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, you can surely after the class ends you can ask me again. You can, अगर मैं बीच बीच में पूछती भी रहूंगी, अगर कहीं लगता है कि कोई बात नहीं समझ आई है, दोबारा समझने की जरूरत है, तो मुझे दोबारा समझ लेंगे. ठीक हो गया? अच्छा ठीक, लेट्स स्टार्ट अप. बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं. आर यू फाइन विद इंग्लिश और उर्दू? जस्ट दिस लास्ट क्वेश्चन. पूरा लेक्चर? मैम जैसे आपके लिए इजी भी। okay, it's easier for me both ways, either ways. So I'll be kind of using mix. Okay, so F2 management accounting, नाम से क्या लग रहा है, क्या है सिलेबस में? किंजा, what is management accounting all about? And I would recommend you to use your mic if that'll be good. Yes, Kinza, I'm waiting for your answer. What is management accounting? What is your understanding about management accounting? Okay, you want to type? Are you more comfortable in that? Because I'll be conducting an interactive class. Okay, I want you guys to answer. Okay, so
your microphone isn't working. Okay, please do something about the microphone. We can do it for one class, but for the other classes, I would like you guys to respond more, because then only I will get to know your understanding about the subject. If I will not hear you, I won't be able to understand that what's your level of understanding, since you both have all are, you know, quite familiar with this subject. So I would like to know your current understanding. So accordingly, I will be delivering my lectures. So, okay, for today, it's okay. But for from tomorrow, inshallah, just arrange a microphone. Okay. Okay. Let's talk about the syllabus first, and then we will get start with the management accounting. Okay, what we have in store for us, F2 management accounting, matlab kya hai? Mubin, can you tell me? What do you understand about this word, management accounting? मैम मैनेजमेंट ये है कि हम लोग अपने जो भी ऑपरेशन हमारे फैक्ट्री के अंदर हो रहे होते हैं, रिगार्डिंग हमारे यूनिट को प्रोड्यूस करने के दौरान हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे होते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग जो है मैनेजमेंट को लेके चलते हैं, एज पर जितना मुझे अभी तक इसकी समझ आई है। मैं एक्सप्लेन सही नहीं कर पा रही इसको। ओके ठीक, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर किस चिड़िया का नाम है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि MA1, MA2 एंड F2, ठीक है, ये तीनों एक ही ब्रांच के पत्ते हैं। FA1, FA2 और F3, ये तीनों एक ही ब्रांच के पत्ते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये क्या सीन चल रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या डिफरेंस क्या है? What is the difference between management accounting and financial accounting? Mubin, what's your understanding about financial accounting? What is financial accounting? जो मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है हमारी, हम इसमें अपनी स्टेटमेंट्स बनाते हैं और ये हमारी ईयरली स्टेटमेंट्स बनती हैं, और इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस हमारा और एसेट की और डेप्रिसिएशन वगैरह का हम लोग इसमें देखते हैं। जो मैनेजमेंट और ये जो स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी कंपल्सरी होती है कि हम लोगों ने इनको बनाया है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये हमारी सपोज फैक्ट्री के अंदर के हमारे मैनेजर्स के दरमियान में वो डिसीजन मेकिंग में यूज होती है, और ये डिपेंड करता है कि आप इसको मंथली भी बना सकते हो, वीकली बना सकते हो, ईयरली, क्वार्टरली, ये डिपेंड करता है आपकी आप पे। ओके, जबरदस्त, आपने बिल्कुल सही बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिल्कुल यही फर्क है। मगर मैं आपको इससे भी आसान एक तरीका बताऊंगी इन दोनों को याद रखने का, कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हम जब भी किसी बड़ी चीज को समझना चाहते हैं ना जिंदगी में, फॉर्मूला बना लो अपना। ये उसूल है कि जिंदगी में जब भी कोई बहुत बड़ी चीज समझनी है तो उस बड़ी चीज को नहीं समझते डायरेक्टली जाके, वो बड़ी चीज जिस एक यूनिट से बनी होती है उस यूनिट को समझ लो, तुम्हें पूरी कहानी समझ आ जाएगी, और ऐसी समझ आएगी कि जैसे किसी को नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम ये एक बड़े कॉन्सेप्ट को, जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, उसके एक यूनिट से समझेंगे। और कैसे समझेंगे देखते हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ की जा रही है, कंपनी में, बिजनेस में, यस और नो? यस मैम। यस। सो हम समझेंगे एक घर की मिसाल। घर क्या है? घर एक यूनिट है। अगर कंपनी बड़े लेवल पे है तो घर उसका एक यूनिट है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या घर में वही सारे मामला नहीं हो रहे जो कंपनी में हो रहे? ऑफ कोर्स हो रहे। घर का सरबरा कौन है? फादर। घर की इंटरनल मैनेजमेंट कौन है? मदर। फादर का क्या रोल होता है एक घर में? फादर के रोल्स बताइए, किंजा टाइप करके बताएं। मुबीन, जब तक मदर के रोल्स बताएं। मैम घर को मैनेज कैसे करना है, हम लोगों ने मंथली कैसे अपने बजट को लेके चलना है,
हम लोगों ने किस चीज पे बिल्स और ये इन चीजों को हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है, वो एक मदर का काम होता है। एग्जैक्टली exactly. घर में बजट आ रहा है, बजट को किस तरह लेकर चलना है, किस फर्द पे खर्च करना है, किस फर्द पे नहीं करना है, किसके एजुकेशन के खर्चा आ गया है, शादी का खर्चा आ गया है, हॉस्पिटल का खर्चा आ गया है, इस महीने हमें कौन से खर्चे को प्रायोरिटी देनी चाहिए, घर में जो ग्रोसरी आ रही है वो कहीं वेस्ट ना हो, ग्रोसरी बनाते हुए कोई चीजें जाया ना हो, खाना बन गया है वो जाया ना हो, घर में हर फर्द की जरूरत पूरी हो, कोई फर्द निग्लेक्टेड ना हो, घर साफ सुथरा हो। यही सारे काम तो कंपनी में भी हो रहे हैं, बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे। क्या मैनेजमेंट नहीं चेकआउट कर रही? आप जाते हो शॉप्स वगैरह में शॉपिंग करने, क्या वहां मैनेजमेंट वहां की साफ सफाई नहीं कर रही शॉप्स की, अपने अपने आउटलेट्स की? क्या वहां पे ऑर्गेनाइज करके चीजों को नहीं रखा जा रहा है? क्या रेस्टोरेंट्स में मेक श्योर नहीं किया जा रहा है कि उनका रॉ मटेरियल जाया ना हो, उनका फूड जाया ना हो, इंग्रेडिएंट जाया ना हो? क्या वहां मेक श्योर नहीं किया जाता कि हर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, मोटिवेटेड हो? तो यही सारे काम मम्मा तो कर रही हैं घर में। बस फर्क ये है कि मम्मा एक सोशल लेवल पे कर रही है, डोमेस्टिक लेवल पे कर रही है, जहां कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। और कंपनी जो है वही सारे काम मैनेजर से करवा रही है, कंपनी में करवा रही है, उसको उसके पैसे मिलते हैं। मैनेजर को भी बजट दिया जाता है और उस बजट में रहकर उसको अपनी फैक्ट्री चलानी होती है, और उस टारगेट भी दिया जाता है कि तुम्हें फलाना इतने सारे कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स बना लेने हैं इस महीने 20,000, और तुम्हें लेबर से सारे काम करवाने, और लेबर कोई रॉ मटेरियल जाया भी ना करे, और लेबर मोटिवेटेड भी हो, लेबर का ख्याल भी रखो, उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखो। ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं? मैनेजर कर रहे हैं। और इन जो मैनेजर ये सारी चीजें कर रहा है, तो उसको किस बेस पर अकाउंटिंग किया जाएगा? ओके, दैट इज मैनेजमेंट। वी हैव डिस्कस्ड मैनेजमेंट। हम अकाउंटिंग के लफ्ज पर भी आएंगे। सो मदर का रोल डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आते हैं फादर के रोल पे। लेट्स सी किंजा व्हाट किंजा हैज टू से। मदर मैनेजेस एवरीथिंग इंक्लूडिंग फाइनेंसेस एंड बजट्स। किंजा, आपको फादर का रोल बताना था। यू हैव टू टाइप आउट फादर्स रोल। जल्दी से फटाफट से बता दें, 1 मिनट। Father's role is to provide money for budgeting. Exactly. Sources of income किस तरह बढ़ाई जाए? फादर की यही फिक्रमंदी होती है कि भाई मैं अपने घर के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा कमा के लाऊं। अभी मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे लोन ले लेना चाहिए? क्या मुझे ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करनी चाहिए कि जहाँ पे मुझे ज्यादा सैलरी मिले? फिर फादर और क्या कर रहे हैं? टैक्सेस वगैरह की चीजें देख रहे हैं कि भाई हमारे टैक्सेस पेड है या नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब पेड है या नहीं, लीगैलिटीज, ये सारे मामलात वो देख रहे हैं। घर किसके नाम पे है? अच्छा, अब बाप जो है बूढ़ा हो गया तो अब बंटवारा होना है, तो कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी बच्चों के दरमियान? ये सब किसकी टेंशन है? फादर की। फादर बाहर के मामला, लीगैलिटीज, सोर्सेस ऑफ इनकम, इस पर सोच रहे हैं। मदर इंटरनल मामला कि होम मैनेजमेंट, अंदर की मैनेजमेंट, किस तरह इसको लेकर चले, किस तरह फैमिली को लॉन्ग रन में लेकर चले, वो सब सोच रही है। तो ये जो फादर का रोल है, ये सेम टू सेम फाइनेंस ऑफिसर का रोल होता है। कहाँ पे? किसी भी कंपनी में। कि फाइनेंस ऑफिसर को ये फिक्र होती है हाउ टू इंक्रीज आवर सोर्सेज ऑफ इनकम, हाउ टू मेक टेक आउट द मैक्सिमम पोटेंशियल आउट ऑफ द मनी। जो भी पैसा कंपनी के पास है उसका मैक्सिमम बेनिफिट यूटिलाइजेशन किस तरह से की जाए। हर डिपार्टमेंट को क्या बजट दिया जाए, बिकॉज कंपनी में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे फादर को पता है घर आके से मदर को देना है, अपनी वाइफ को देना है। अगर फादर की अम्मी भी हयात हो तो अम्मी को कितना देना है, कोई एक आधा भाई की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो तो उनको कितना देना है। सब फादर की फिक्रमंदियां हैं, और यही फाइनेंस ऑफिसर की हैं। तो यहाँ पे आई होप कि मैनेजमेंट और फाइनेंस के बीच में क्लियर है। क्लियर है बात? तो बोलो यस, गिव अ थम्स अप। यस मैम। ऑल राइट, मूविंग अहेड। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग
भैया अकाउंट्स की हिस्ट्री क्या है? दुनिया को कब अकाउंटिंग की जरूरत पड़नी महसूस हो गई, और अकाउंटिंग किस बला को कहते हैं, किस बला का नाम है? यस भूमि। मैम, डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, अ, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ऑलराइट। हर बिजनेस, हर बिजनेस क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं आसान भाषा में? लेन देन। मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे सामान दिया, आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है? तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। एनी ट्रांजैक्शन, एनी लेन देन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। और इसी रिकॉर्डिंग के तरीके को या इसी रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। मैं आप लोग को एक नसीहत कर रही हूं कि जब भी ये वर्ड अकाउंटिंग आए, आपके जहन में दो लफ्ज आने चाहिए, दो लफ्ज। नंबर वन, रिकॉर्डिंग। नंबर टू, वैल्यूएशन। क्या है? मुबीन, किंजा, बोलिए। नंबर वन, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। 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 रिकॉर्डिंग बोले तो, रिकॉर्डिंग मतलब कहाँ रिकॉर्ड करें, किस खाते में रिकॉर्ड करें, किस प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, किस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करें, कौन सी साइड में करें, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा रूल फॉलो होगा, करें रिकॉर्ड या ना करें, इसके लिए प्रोविजन अराइज करें या फिर इसको बैड डेट करें, अलाउंस क्रिएट करें या ना करें, ये सब रिकॉर्डिंग में आ जाता है। और वैल्यूएशन, किस कैलकुलेशन में करें, क्या फॉर्मूला लगाएं, कैसे एस्टिमेट निकालें, ये सब वैल्यूएशन में आ जाता है। एंड ये दोनों वर्ड्स मीन्स अकाउंटिंग। दुनिया में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की आखिर जरूरत क्यों पेश है? जी, जवाब दीजिए। दुनिया में आखिर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों महसूस हुई किसी को, कि ये अकाउंट्स का वर्ड इजाद हो गया और ये पूरी अकाउंट्स की फील्ड इजाद हो गई और इतना बड़ा ये इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन ACCA, CA, ICAW, CMA, ये सब आ गए? मैम, अगर हम लोग किसी और कंट्री में कहीं पे भी हम लोग अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या किसी और के साथ, पर्सन के साथ हम काम करना चाहते हैं, तो obviously उसको हमारे जो सॉरी, बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, ये चीज़ों को उसको पता होना चाहिए। अगर हमारा एम्प्लॉय है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग की ये रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। और मैनेजमेंट का इसलिए क्योंकि हम मैनेजमेंट हम लोग, हमारी फैक्ट्री किस तरह वर्क कर रही है, इन चीज़ों को देखते हुए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। राइट, सही फरमाया आपने, ऐसा ही है। मगर इनिशियली ऐसा क्या हुआ होगा कि अकाउंटिंग की जरूरत महसूस हुई? इनिशियली ये तो आप वो बात की कहानी बता रही है कि हाँ पूरा साल बिजनेस ने काम किया, अब उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, ये जाहिर है अब किसी को वन गो में देखना है तो सामने कोई रिपोर्ट होगी तो देख के बताएगा ना कि कैसा जा रहा है। तो दैट्स गुड, बट इनिशिएशन कि ओहो, हमें तो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, और इसकी रिकॉर्डिंग फिर हम कैसे करें? ओह अच्छा अच्छा, इसके कुछ उसूल बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, डेबिट क्रेडिट रूल्स बनाने चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई क्यों, ये कहाँ से शुरुआत हुई होगी? हम बिजनेस, हमारा बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, इसके लिए भी मे बी इसलिए जरूरत पड़ी हो कि हमें ओके, पता नहीं होता कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है। किंजा, सबसे छोटा बिजनेस बना बताएं। ओके, किंजा कह रही है किसी को भी अगर पे कर रहे हैं या दे रहे हैं, अगर ना लिखें तो पता नहीं चलेगा, सो दैट्स व्हाई इसकी नीड हुई। ओके, योर क्लोज। मुझे एक सबसे छोटा बिजनेस बताएं जो आपने आसपास देखा होगा, सबसे छोटा, सबसे छोटे लेवल पे। एंड किराना स्टोर।
किरियाना स्टोर, उससे भी छोटा, सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे छोटा बिजनेस मॉडल। ऑल राइट, कभी ठेले वाले से फ्राइज लिए हैं? यस मैम। खाए है ना? क्या है उसके पास? यस मैम। एक छोटा सा ठेला, उसमें एक छोटा सा स्टोव और फ्रायर और बहुत सारे आलू और एक छुरी और कुछ केचप की बॉटल्स। इसी तरह कोई एक आध और स्मॉलेस्ट बिजनेस का बताएं। मैम जूस। फ्रूट वाला, उसका ठेला, क्या है उसके ठेले पे? कुछ फ्रूट्स, एंड बस वो उस ठेले को धक्का देते हैं और जाते हैं और बेचते हैं। दैट इज द स्मॉलेस्ट बिजनेस मॉडल यू कैन सी। तो किसी बड़े मॉडल को समझने के लिए उस स्मॉल मॉडल को समझ लो। और वो स्मॉल मॉडल क्या है? वो ठेला, ये जो बिजनेस है या कोई भी बिजनेस 5 एलिमेंट से बना है। कैन यू टेल मी दोस 5 एलिमेंट्स? व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस? यानी कि अगर वो आप ये ठेले में वाले को भी देखोगे, फ्रूट वाले को, तो उसके पास भी वो 5 एलिमेंट्स हैं। अगर नहीं है तो फिर वो उसका बिजनेस नहीं है। मैम उसकी सेल्स। ओके, सेल्स को हम एज एन इनकम ले लें। सेल करेगा तो इनकम आएगी ना कोई यस मैम। हो रही है। नेक्स्ट, मैम मार्केटिंग। फ्रूट वाला मार्केटिंग करते हैं? हाँ करते हैं, अपने अंदाज से करते हैं, मगर मैं एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ। और इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो हर किसी में मौजूद हो। अगर ठेला वाला चाहे तो मार्केटिंग नहीं करे, मर्जी है उसकी, खामोश रहे, पॉसिबल? यस मैम। पॉसिबल। मगर अगर वो चाहे कि नहीं मेरी कोई इनकम ना हो, पॉसिबल? नो मैम। नो, बिकॉज वो वहां बैठा ही इसलिए कि इनकम हो। ये है वो एलिमेंट्स कि जो हर बिजनेस में लाजमी होंगे। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो चॉइस। मार्केटिंग इज अ चॉइस, यू डू और यू डोंट डू। जी, ये आपके वही बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे डेबिट क्रेडिट के रूल्स बनते हैं। आई एम गिविंग यू अ क्लू। ओके, एसेट्स। एसेट है, ठेले वाले के पास क्या है एसेट? प्राइस के पास उसके जो एसेट है वो उसकी जो कुक जिसके ऊपर वो कुकिंग कर रहे हैं वो है, और अगर फ्रूट्स है तो उसके लिए उसका जूसर उसका एसेट है। और उसका ठेला उसका एसेट है। ठीक हो गया। फिर यस नेक्स्ट एलिमेंट, मैम। स्टॉक। स्टॉक एसेट्स में फॉल करेगा ना। लायबिलिटी, yes, good job, Kinza. Like asset, capital, equity, expenses, revenue. Yes. So these are the 5 elements. और इन 5 elements को जरा हम सही से जरा देख लेते हैं ताकि आप लोग की बात समझ में आ जाए। Assets, expenses, liabilities, income, and capital. These are the 5 ingredients of any business. याद कर लो, जहन नशी कर लो, वैसे आप लोग को पता ही है ये चीज। बस ये नहीं पता होगा कि इसे इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। भाई अगर छोटा बिजनेस भी उठा लो ना तो उसमें ये 5 चीजें होंगी। अगर नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। उसकी लायबिलिटी होगी, उसके कोई ना कोई पेबल्स होंगे, उसकी इनकम होगी, वो कुछ ना कुछ सेल करके कमा रहा होगा, उसका कैपिटल होगा, उसने अपनी जेब से निकाल के अपने बिजनेस में कुछ लगाया होगा।
उसके एसेट होगा, उसका ठेला होगा, उसके प्राइस होंगे, एक्सपेंसेस रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे होंगे, आलू खरीदना, आलू बेचना और डब्बे खरीदना, ये उसका एक्सपेंस है। केचप की बोतल जाया हो गई तो फिर नया केचप खरीदना, सॉल्व इट ऑल फॉल्स अंडर एक्सपेंसेस, राइट। और फिर आप लोगों ने यकीनन FA1 में ये सीखा होगा डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं, कि ये मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि भैया जब भी अकाउंटिंग की दुनिया में कदम रखो, दो चीजों का ख्याल रखो। एक तो अकाउंटिंग के वो दो लफ्ज याद रखो, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन, एंड दूसरा ये अकाउंटिंग का चश्मा पहन लो बेटा। अकाउंटिंग का चश्मा क्या कहते हैं कि भैया डेबिट साइड में अगर एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, अगर किसी भी बिजनेस के एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे तो कौन सी साइड पे रिकॉर्डिंग होगी? डेबिट। अगर लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज करेगी तो कौन से साइड में रिकॉर्डिंग होगी? क्रेडिट। राइट। सो दिस इज द बेसिक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। ये चश्मा लाजमी पहने रखना जब भी हम कोई अकाउंटिंग का सवाल करें। ठीक हो गया। तो ये थी छोटी सी कहानी हमारी अकाउंटिंग की दुनिया की, और जिसमें एक चीज रह गई कि भैया ये अकाउंटिंग की इनिशिएशन हुई कैसे। इनिशिएशन भैया इस तरह से हुई कि जब फ्रूट वाला अपने फ्रूट्स बेच रहा होता है, ठीक है, और उसका एक छोटा सा ठेला होता है, और वो जरा नौजवान सा होता है, 24 साल का होगा और थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है, इंटर तक कर लिया है, मगर उसकी नौबत ये आ गई है उसे फ्रूट बेचने पड़ रहे हैं। अब वो फ्रूट बेच तो रहा है मगर वो कुछ सोच भी रहा है कि भाई मैंने कितना फ्रूट खरीदा, कितना फ्रूट मैंने बेचा, कितने पैसे मुझे सप्लायर को जाके देने हैं, मेरा ठेला क्या किराए का ठेला है या मेरा अपना ठेला है, अच्छा जी मुझे कल कौन से फ्रूट्स खरीदने चाहिए, मेरे कुछ फ्रूट जाया हो गए, मेरा क्या लॉस हुआ। तो ये सब वो किस तरह रिकॉर्ड कर रहा है इसको नहीं, दिमाग में। कोई अनपढ़ भी है ना फ्रूट वाला, तो वो क्या कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? अपने दिमाग में। तो ये जरा सा पढ़ा लिखा आ गया, तो इसने क्या किया, एक छोटी सी नोटबुक ले ली और उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि ताकि मैं भूलूं नहीं, ताकि मैं भूलूं नहीं। तो वो भूले नहीं इसलिए अकाउंट्स की जरूरत महसूस हुई। फिर इस नौजवान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कारोबार को थोड़ा बढ़ाऊं, बड़े लेवल पे लेकर आऊं, मैं सिर्फ क्यों ठेले पे बेच रहा हूँ, मैं इसको एक शॉप में तब्दील कर देता हूँ। तो उसने फ्रूट शॉप में तब्दील कर लिया। फ्रूट शॉप में तब्दील कर लिया, वहां एक बंदा भी हायर कर लिया, सप्लायर्स भी दो चार बना लिए। अब किस सप्लायर से कौन सा फ्रूट आ रहा है उसको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, लाजमी करनी पड़ेगी, मैनुअली करे, क्योंकि अभी पैसे नहीं है कि वो कंप्यूटर सिस्टम ले, तो वो मैनुअली करेगा। फिर वो सोचेगा कि अब पैसे आ गए हैं, अब क्यों ना मैं इसको कंप्यूटराइज कर दूं, नेक्स्ट लेवल पे जाए। फिर वो थोड़ा और ग्रो करेगा, इनकम का आएगी तो वो सोचेगा क्यों ना मैं इसको सुपरमार्केट में तब्दील कर लूं। फिर वो थोड़ा और ग्रो करेगा तो बोलेगा क्यों ना मैं एक और ब्रांच खोल लूं। फिर वो थोड़ा और ग्रो करेगा तो बोलेगा कि मैं क्यों ना इंटरनेशनली वो करूं। थोड़ा और ग्रो करेगा, बोलेगा क्यों ना मैं ऑनलाइन फ्रूट्स बेचूं घर पे, बिला वजह कस्टमर्स आते हैं इतनी गर्मी में। एट योर डोर स्टेप, फल एट योर डोर स्टेप, फ्रेश फल। तो उसके दिमाग में ये आइडियाज आते जाएंगे और उसके रास्ते खुलते जाएंगे, और वो जो है, लेकिन इन सब चीजों में क्या वो ये सब ग्रो कर सकता है मैनुअली? पुराने जमाने में लोग करते थे ग्रो, मैनुअली होता था सब कुछ, जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे, जब इंटरनेट नहीं था, जब वाईफाई का जमाना नहीं था, लोग करते थे सब मैनुअली, खाते बनाते थे। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े खाते हैं, इसीलिए तो इतनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ी है ना आप लोग ने, यस और नो? यस मैम। क्यों, कौन कौन सी है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, जर्नल, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, ये सब है ना प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये सब इतने सारे बुक्स की इसीलिए जरूरत थी कि भाई सब मैनुअली हो रहा था। फिर जर्नल से लेजर में जाती है कहानी, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाती है, और ट्रायल बैलेंस से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये जो पूरी कहानी मैनुअली चली, जैसे ही कंप्यूटर इजाद हुआ तो सारा खेल कहाँ आ गया? आपकी उंगलियों में। पहले कंप्यूटर्स आए, उसमें आया, फिर लैपटॉप्स आ गए, अब तो मोबाइल में ही सारा बिजनेस चल रहा होता है। सो ये थी जरूरत अकाउंटिंग। मोर ओवर, जब आप बिजनेस बड़ा करते हो, ग्रो करते हो, आप ठेले से सुपरमार्केट तक पहुंचते हो,
तो अब सुपरमार्केट में आप पहुंच गए और वहां पे जाहिर है आप अकेले तो हर काम नहीं करोगे ना, अकेले सेल्समैन भी बने हुए हो, अकेले कैश काउंटर पे भी हो, अकेले पैक भी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. यू विल हायर पीपल, एंड व्हेन यू हायर पीपल, व्हाट्स द गारंटी दैट दे विल बी लॉयल टू यू? व्हाट्स द गारंटी? देयर इज नो गारंटी. And therefore there was the need of recording, of having, of placing controls so that the corruption, the theft can be minimized, or it can be ensured that there is no hanky-panky going on in the company. इसलिए जरूरत महसूस हुई और इसलिए अकाउंटिंग इजाद हुई, एंड ग्रेजुअली इट इवॉल्व. पता चला भाई रूल्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से होगा, ये फॉर्मेट होना चाहिए, एंड इट्स स्टिल इवॉल्विंग. इट्स स्टिल इवॉल्विंग एंड इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग, क्योंकि जाहिर है इंसान की जरूरत चेंज होती रहती है, वक्त के तकाजे चेंज होते रहते हैं. पहले मैनुअली बहुत सारे खाते मेंटेन करने की जरूरत थी, अब सिर्फ एक लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट्स इट, और एक बंदा चाहिए जो उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर ले. And then again it depends upon the nature of your business. Business to business vary करता है. Food industry बिल्कुल अलग तरह से operate करेगी. The basics will be the same, principles will be the same, but definitely the needs and requirements are different. Education industry different तरीके से operate करेगी, लिहाजा उसकी accounting भी slightly different तरीके से होगी as per the needs. Same goes for health industry. मगर basic ingredients, one unit, वो सब सेम रहेगा, उसूल ये सब सेम रहेंगे. फिर चाहे आप कोई भी क्वालिफिकेशन कर लो, ACCA कर लो, ICAW कर लो, सीमा कर लो, कुछ भी कर लो, बेसिक्स विल ऑलवेज रिमेन सेम. ABC रहेगी, ठीक है ना. कोई भी PhD के भी लेवल पे चले जाओ तो CAT CAT ही स्पेल करोगे, TAC नहीं हो जाएगा PhD करने जाओगे तो, ठीक है. या MA इंग्लिश में BAT BOT नहीं हो जाएगा, बैट है, ठीक है. English will remain English like this, it will be spelled like this forever, right? तो ये बेसिक्स है. आई होप यहाँ तक क्लियर है. क्लियर है तो बोलो यस. ओके, आई गॉट द थम्स अप, राइट. ओके, अच्छा ये 4 मिनट्स में मीटिंग एंड होगी, तो आप लोग दोबारा उसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी. थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है. अभी जो भी मैंने बताया वो सब एक फाउंडेशन थी. तो फाउंडेशन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, तभी बिल्डिंग सही खड़ी होती है, राइट. अच्छा, ये जो सारे चैप्टर्स हैं, लेट मी टेल यू, दिस पार्ट A इज ओनली एन इंट्रो टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड दिस इज ऑल अ रिविजन फ्रॉम योर MA1 and MA2 topics. ठीक है. So whenever I teach F2, I usually leave this up to the students to revise, because ये सब वही topics हैं जो repeat हुए हैं, जो MA1 और MA2 में आप पढ़ते चले आए. Next, part B is all about data analysis, statistical techniques. This is new. This part is completely new for you guys. Part C is cost accounting techniques. Cost accounting techniques में this is the core of your syllabus. ये पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर हिस्सा है. मतलब this is why we are studying management accounting, and as you know, management accounting is the mother's role in the house, right? So that mother's role perform कैसे हो रहा है, एक चीज किस तरह मेंटेन की जा रही है, तो वो सब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे. Next, coming on to the budget, budgeting किस तरह से होगी, we are going to see that in part D. Part E is all about standard costing, where we see the standard costing, cost variances, sales variances, and operating statements. And last part is performance measurement, where we are going to set the targets, where we are going to measure the performance, the financial performance and the non-financial performance, right? So let's now, we have seen the syllabus, and let's now move on to the exam structure. एग्जाम स्ट्रक्चर जैसा आप लोग MA1 MA2 आप लोग को आइडिया होगा, इट्स जस्ट द सेम. द एग्जाम स्ट्रक्चर इज नथिंग डिफरेंट than any other of your CBE exams, computer based. Section A would consist of 35 compulsory objective test questions, 2 marks each, which will constitute 70 marks. Section B would constitute 3 compulsory multitask questions of 10 marks each,
and it will be subdivided into 2 marks and therefore constituting 30 marks. जो सेक्शन बी है वो मेनली सिलेबस एरिया सी, डी और ई से आएगा, ठीक है। सी, डी और ई से टेस्टिंग होगी सेक्शन बी में, बट अगेन MTQs आर जस्ट लाइक MCQs। बेसिक डिफरेंस क्या है कि MTQ में आपको एक सिनेरियो गिवन होगा और उस सिनेरियो से रिलेटेड 5 सवाल होंगे जो कि 2 मार्क्स ईच के होंगे, जिससे आपके 10 मार्क्स बन गए। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, though there is nothing to worry about in management accounting, yet there is a lot of hard work which needs to be put into this subject. Why? Because this is 80% your practical sums subject, जिसमें आपके sums बहुत हैं, practice बहुत करनी है, formulas बहुत सारे हैं, and 20% is theoretical. Okay, 20% is theoretical. But the good news is कि आप अगर MA2 पढ़ के आए हैं, आप MA1 पढ़ के आए हैं, तो half the job is done. Half job is done, ठीक है। half job हम यहाँ पे complete करेंगे, and again let me tell you, it's all about practice, practice and practice. Practice will make you perfect, and your concepts needs to be clear. अगर concepts clear हैं, formula याद है, practice सही से हुई है, you're good to go. I recommend my students कि कम से कम एग्जाम में बैठने से पहले आपने BPP की किट, कम से कम कोई सी भी किट हो, BPP फॉलो कर रहे हो या फिर कैपलान फॉलो कर रहे हो, किट आपने कम से कम 3 times खत्म करनी है, प्रैक्टिस करना 3 times. Yes, it's not a joke. 3 times, including example sums of the chapter, including backside questions of the chapter, ठीक है। And my preference would be you go for BPP first and then Kaplan. मतलब जब BPP 3 दफा प्रैक्टिस कर चुको तो फिर कैपलान के क्वेश्चंस कर लेना if you have time. If not, focus on one text.